Good morning, students. We'll start with our next lecture of admission of partner. Now, in today's lecture, we'll solve an unsolved sum from our test book. Now, this is a sixth sum. What is given first we will read and then we'll proceed with the sum. क्या दिया है यहाँ पर? It's given Mr. Deep and Karan were in partnership sharing profit and losses in the proportion 3:1. The profit sharing ratio is given 3:1. The balance sheet as on 31st March 2018. This is the balance sheet liability side and asset side. We'll proceed with the asset side पहले. Asset side करेंगे. Cash, sundry debtors, stock, land and building, machinery and furniture. This all things जैसा है वैसे का वैसे where we will write in our new balance sheet asset side. I have prepared here. If you are preparing a separate cash account, आप उसके डेबिट में भी बैलेंस लिख सकते हो. आई एम नॉट प्रिपेयरिंग सो आई विल राइट ईयर ओनली. कैश उसके नीचे ब्रैकेट में 40,000 आई विल राइट. देन आई हैव सन्ड्री डेटर्स 32,000. Then we have I will leave one line and then I will write land and building 16,000. Again I will leave one line and write stock 20,000. Then I will leave one line and write plant and machinery and plant and machinery we don't have any adjustment. I can write the amount in second column 30,000. Then last we have furniture. यानी कि आपको ध्यान में रखना है जो भी आप बैलेंस शीट से उठाओगे वो आपको न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखना है. With this we have done with our balance sheet asset side. Now we'll go towards the liability side. Creditors, bills payable, bank overdraft. ये तीनों के तीनों आपको न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिखने हैं. दैट विल राइट. ऊपर की हम जगह छोड़ देंगे कैपिटल एन फॉर ऑल दिस थिंग्स. आप यहाँ पर लिख सकते हो क्रेडिटर्स 40,000, bills payable 10,000, bank overdraft 11,000. Now the next what is given here, let us see and then we'll proceed. उसके बाद में हमारे पास है दोनों पार्टनर्स का कैपिटल. दैट विल ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. So here is my partner's capital account. Here I will transfer by balance, brought down 60,000 in Deep's column, 20,000 in Karan's column. उसके बाद में जो दिया है वो है हमारा जनरल रिजर्व. When the new partner is being admitted, whatever we have from first, that will distribute between the old partner in the old profit sharing ratio. Where will distribute? In our capital account. By general reserve लिखना है आपको. 8,000 we are supposed to distribute in the ratio 3:1. The first one will get 6,000. Second one 2,000. Okay. With this we completed our balance sheet. Now we'll go towards the adjustment. They admitted Shubham into partnership on 1st April 2018 on the following terms. पहला क्या है? First one is given. He shall bring 20,000 as capital for 1/5 share in future profit. Okay. पहले हम इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं. पार्टनर न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग कैश. एक इफेक्ट तो यहाँ पर आएगा बाय कैश अकाउंट.
डायरेक्टली इन द न्यू पार्टनर्स कॉलम, पेपर फोल्ड किया इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा, 20,000 लिख रही हूँ मैं यहाँ। Second effect, if you are preparing cash account, you will write on the debit side partner's name to Shubham's capital account. Otherwise, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया है वैसे आपको ऐड करना है। अब दो इफेक्ट हो गए। Again we'll go towards our adjustment. And he brings 10,000 as his share of goodwill. Partner is bringing goodwill also in cash. तो एक इफेक्ट तो यहाँ पर आएगा, कैश अकाउंट में ऐड करेंगे। अगर आप गुडविल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आप लिखोगे, और उसके बाद में एक इफेक्ट आएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 10,000 goodwill has been distributed among the old partner in the ratio 3:1. So the first one will get 7,500, second one 2,500. After that we have a provision of 5% doubtful debts to be created on sundry debtors. What they have told you? They have told you to create a new RDD. So first we'll proceed towards the balance sheet. Balance sheet में लिखेंगे less RDD at the rate of 5% it is told, and 32,000 पर 5% आएगा 1,600, 30,400 यहाँ बचा। ये हमारा नुकसान है। As it is our loss, we'll write here to RDD because this is our nominal account. Okay. फिर हम अपने एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे। क्या दिया है? फर्नीचर डेप्रीसिएट बाय 20%। फर्नीचर डेप्रीसिएशन करने के लिए बोला गया है। तो हियर इज माय फर्नीचर, लेस डेप्रीसिएशन at the rate of 20%, 11,000 पर 20% आएगा 2,200, माइनस करने के बाद में 8,800 यहाँ पर बचे। सेकेंड इफेक्ट ये भी हमारा नुकसान है। सो हियर विल राइट टू फर्नीचर। वाई? बिकॉज नॉमिनल अकाउंट लॉस हैज़ टू बी डेबिटेड। नेक्स्ट अगेन विल प्रोसीड टूवर्ड्स आर सम। Stock should be appreciated by 5%. Okay, first we'll go towards the balance sheet. Add appreciation. How much we are appreciating? 5%. 20,000 पर 5% आएगा 1,000, यहाँ 21 हो गया। ये हमारा फ़ायदा हुआ। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय स्टॉक 1,000। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट, बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%. ओके, विल मूव टूवर्ड्स आर बैलेंस शीट। बिल्डिंग प्लस एप्रिसिएशन, कितना ये भी एप्रिसिएट करना है? 20%। 16,000 पर 20% आएगा 3,200, यहाँ 19,200 हो गया। ये हमारा गेन है, प्रॉफिट है। सो विल राइट हियर बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,200। ओके, अब एक लास्ट एडजस्टमेंट बचा है। उसमें क्या दिया है? कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर इज़ टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट। इस बार हमें कैश अकाउंट बनाकर एडजस्ट करने के लिए बोला गया है, लेकिन उसको करने से पहले हमें अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट वी हैव ओनली 2 थिंग्स दिस साइड एंड 2 थिंग्स दिस साइड। देखने से ही समझ में आता है कि ये टोटल ज़्यादा हैवियर है। Here we have 4,200. Same total will write here 4,200. And the total of this is 3,800 माइनस करने के बाद में भी यहाँ पर 400 हमारा प्रॉफिट हुआ। कहाँ ट्रांसफ़र करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
and will distribute between the old partner, that is Deep and Karan. 400 when you distribute in the ratio 3:1, the first one will get 300, second 100 will transfer, और फिर हम इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे. टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 300 and 100. अब मैं आपको आराम से धीरे धीरे बताती हूँ कैसे करना है. विल डू योर फर्स्ट, वी आर सपोज टू फाइंड आर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो यहाँ ऊपर मेरे पास जगह है, वहाँ पर मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, ये तो हमारी ओल्ड रेशियो है, दिस इज़ माई ओल्ड रेशियो. आई विल शो यू हाउ टू प्रिपेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. The formula of new profit sharing ratio is old ratio into balance of 1. Balance of 1 का formula है 1 minus share of new partner. और यहाँ पर इस सम में share of new partner कितना दिया है 1/5. ओके, तो वही लेकर हम अपना बैलेंस ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे. दैट इज 1 minus 1/5. इट विल कम 5 minus 1/5. दैट यू विल गेट बैलेंस ऑफ 1 4/5. अब एक एक करके सबकी रेशियो फाइंड आउट करते हैं. पहले डीप से स्टार्ट करते हैं. डीप की ओल्ड रेशियो थी 3/4 इंटू 4/5. we got 12/20. Current 1/4 into 4/5, 4/20. शुभम 1/5 पता है. अगर हमें डिनोमिनेटर में 20 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर से भी 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, will get 4/20. So my new ratio will be is equal to 12:4:4. अब हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगी, इधर लिखती हूँ ताकि खिचड़ी ना हो जाए. our new profit sharing ratio is 3:1:1, क्योंकि 12 और 4 दोनों 4 के टेबल में जाते हैं. सो आर रेशियो विल कम 3:1:1. अब ये रेशियो में हमको हमारे पार्टनर्स का कैपिटल जो है वो एडजस्ट करना है. ये दीप का शेयर है, करण, एंड दिस इज शुभम शेयर. विल स्टार्ट विद द न्यू पार्टनर. अब शुभम ही ब्रॉड कैपिटल, कितना कैपिटल वो लेकर आया है 20,000. ही ब्रॉड 20,000 कैपिटल फॉर 1 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट. यानी कि एक शेयर की कीमत कितनी हो गई 20,000. एक शेयर की कीमत, उसको फ्यूचर प्रॉफिट में से एक हिस्सा मिलने वाला है. उस एक हिस्से के लिए 1 शेयर के लिए ही गेव 20,000 टू द पार्टनरशिप फर्म. सो व्हाट विल बी द डीप शेयर. डीप का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3. सो जस्ट वी हैव टू डू 3 into 20, 60,000 मिलेगा. और करण का तो रेशियो ही 1 है, तो 1 into 20 अगेन यू विल गेट 20,000. यानी कि दिस इज़ द कैपिटल एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. समझ में आया. इसके पहले भी हमने सम किए थे, वहाँ पर भी मैंने समझाया था. आज भी मैंने कोशिश की है आपको आराम से समझाऊँ. सिर्फ आपको क्या करना है, जो न्यू पार्टनर है हाउ मच कैपिटल ही हैज़ ब्रॉट, दैट यू आर सपोज टू डिवाइड बाय द शेयर ही विल गेट इन फ्यूचर प्रॉफिट. यहाँ तो 1 ही है, तो 1 से डिवाइड करने के बाद में भी 20 आएगा. 20 into द ओल्ड पार्टनर्स न्यू रेशियो दीप, दैट इज़ 3, 60,000 इसका हुआ. 1 into 20, 20,000. और यही हम कैपिटल वहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे. कहाँ लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन करके.
60,000 इसका, 20,000, 20,000, और जो भी डिफरेंस आएगा वो हमें कहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए बोला गया है. दे हैव टोल्ड अस टू ट्रांसफ़र टू कैश अकाउंट, सो विल ट्रांसफ़र इन कैश अकाउंट. ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक. तो अब हम अपना कैपिटल अकाउंट क्लोज करना स्टार्ट करते हैं. This side we have 73,800, 24,600 and 20,000. Same total will write here 73,800, 24,600 and 20,000. जो भी माइनस करने के बाद में बचेगा वो टू कैश अकाउंट करके हमें यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया है. और यहाँ पर कितना आया? Here the difference is 13,800. Here it is 4,600. अब ये कैश अकाउंट का कहाँ जाएगा? It will go here. मैं आपको रेड पेन से लिख कर बताती हूँ. यहाँ पर लिखने का मतलब है कि कैश बाहर जा रहा है. When it is going outside, it has to be subtracted. Minus 13,800 minus 4,600. If you are preparing cash account, it will go on credit side. Okay, तो इसका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 51,600. और ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ये हम अपने कैपिटल अकाउंट यानी कि लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट करके ट्रांसफ़र करेंगे. विल गिव अ कॉमन हेडिंग दीप, करण, शुभम. 60,000, 20,000, 20,000. Total 1 lakh. We'll close this side. We have only creditor, bills payable, bank overdraft and capital account का बैलेंस है. तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है वो है 1,61,000. And the same total we are getting on asset side also 1,61,000 after adding 51,600, 30,400, 19,200, 21,000, 30,000 and 8,800. अब जर्नल एंट्रीज की तरफ चलते हैं, वो देख लेते हैं. अब इसकी अगर हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे तो फर्स्ट जर्नल एंट्री विल कम फ्रॉम योर स्टॉक. Stock account debit to revaluation account being stock appreciated or being stock increased. Land and building account revaluation account being land and building appreciated. Third, revaluation account debit to RDD being RDD created on sundry debtors. Revaluation account debit to furniture account being furniture depreciated. Fifth, revaluation account debit to Deep's capital account to current capital account being profit transferred to capital account. Then here 6, general reserve account debit to Deep's capital account to current capital account being general reserve distributed among the partner. 7, cash account debit to Shubham's capital account being capital brought by the new partner. 8, goodwill account debit to Deep's capital account to current's capital account being goodwill distributed among the old partner. इसकी एंट्री ऑलरेडी हम कर चुके हैं. इसकी एंट्री हम करेंगे तो वो आएगा Deep's capital account debit, current's capital account debit to cash account being different transferred to cash account. जर्नल लेजर दोनों बहुत सिंपल हैं. अगर आपने देखा होगा ये 6th सम है. अगर आप ध्यान से देखा होगा आपने, नथिंग इज़ टफ. द सम्स आर वेरी इजी वेदर यू डू जर्नल और यू डू लेजर, नथिंग इज़ टफ. उनका कैपिटल रेशियो में कैसे एडजस्ट करके फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है.
ये मुझे लगता है थर्ड या फोर्थ सम है जिसमें मैं कैपिटल का एडजस्टमेंट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये भी टफ नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करनी है वो भी मैंने आपको ध्यान से एक्सप्लेन किया है। फॉर्मूला से याद रखना है सिर्फ। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन, और बैलेंस ऑफ वन का फॉर्मूला है 1 माइनस द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। फिर बैलेंस ऑफ 1 माइनस करने के बाद में उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करने के बाद में हमको बैलेंस ऑफ 1 मिलेगा। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को मल्टीप्लाई करो, विल गेट योर न्यू रेशियो, एंड दैट न्यू रेशियो वी गॉट हियर दैट वाज 3:1:1. Now the new partner, for getting one share in the future profit, he brought 20,000. So what will be Deep's capital in new profit sharing ratio? 60, and current's capital will be 20. सम आपको अच्छे से व्यू करना है, ध्यान से व्यू करके उसी दिन जर्नल लेजर दोनों की प्रैक्टिस करनी है। डोंट वेट फॉर द एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पर अगर आप करने बैठोगे तो बहुत प्रेशर आएगा। सो डेली जब भी सम होता है, वेन एवर वी कंप्लीट वन सम, उसी दिन आप वो सम नोटबुक में सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे अकाउंट्स उतना आपका अच्छा हो जाएगा। ओके, और जर्नल लेजर दोनों की प्रैक्टिस करो। एक बार लेक्चर व्यू करने से समझ में नहीं आएगा तो दूसरी बार व्यू करो। ओके, व्यू फॉर द सेकेंड टाइम। स्टिल you don't understand, don't take tension, I am there. When I'm taking lecture on Google Meet, you can ask me that time whatever doubt you have. जहाँ पर आपको जो एडजस्टमेंट नहीं समझा आप तभी मेरे को पूछ सकते हो। लेकिन डेली लेक्चर व्यू करने के बाद में मेक अ हैबिट टू डू द सम इन योर नोटबुक। डू दैट सम इन दैट नोटबुक दैट डिड इटसेल्फ। जर्नल लेजर दोनों की प्रैक्टिस करो। फिर भी अगर डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।